Hello, my dear students. Today we will discuss the important topics from geography and IR during the period of 15 to 21st of March. So let's see which all topics we have today. Today in the geography section we have the special panel which is created on the mythical Saraswati River, the Gobi Desert which was in news recently, the Chenab Bridge which is one of the highest bridge in the world. Then Baikal, Lake Baikal, we have a special topic about Baikal in which we are studying the neutrinos in the Baikal Lake. Then International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. This is a conference which was started by India. It is an initiative of India, and recently this was also in news. So we will discuss about this. The other topics will be India Finland Virtual Summit, which was recently held. The UK's Turning Scheme. So basically, it is named after the famous mathematician Alan Turing, who decoded the important messages in the World War. Then Sinatra Doctrine, this is an important article from the international relation perspective. Istanbul Convention and India's efforts towards the Act East policy. In this we will discuss how Act East is different from Look East and what steps India is taking to make Act East policy a success. So let's start with the first topic in the geography. It is related to the mythical Saraswati River. So the center has reconstituted an advisory committee to prepare a plan on studying the mythical Saraswati River. The idea is to study this. This will be done in the next 2 years. So the from the UPSC perspective, what is important is what can be the question on this. So the question can be the important places or the important rivers or tributaries which is associated with the Saraswati River. Okay, then the bodies like Archaeological Survey of India, है ना, which has issued a notification for the reconstitution of the advisory committee. So Archaeological Survey of India, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि what is Archaeological Survey of India, which ministry के अंदर ये काम करता है, ये स्टैट्यूटरी है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. तो सरस्वती रिवर के बारे में देर आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट इट originates from the Kapal Tirath in the Himalayas west of Kailash, and it flows through Haryana, Rajasthan, North Gujarat. So basically, this was a river which was considered to be one of the most important rivers in ancient times. So our Rig Vedas also mention this, and the name Saraswati itself has been named as the goddess of learning. So the name Saraswati has been mentioned in the Vedas, Manusmritis, Mahabharata, and Purans, and this name, the Saraswati, has been mentioned more than the river Ganga itself, than the name of the river Ganga itself. So Saraswati river has been named 80 times more than the river Ganga. So this means that there was something there. Now the river is no more in that area. So it is also believed that the river supported the Harappan civilization around 4500 years ago, and the demise of the Saraswati can be one of the main regions of the demise of the Harappan civilization also. In the Rig Veda also, there is a mention of the term of Sapt Sindhu. सप्त सिंधु का मतलब है सेवन रिवर्स, तो उसमें सरस्वती एक आती है. अब नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, द नेम्स, एंशिएंट नेम्स ऑफ द रिवर कैन बी आस्क्ड. फॉर एग्जांपल सतलुज एंशिएंट नेम इज सताद्रु, ब्यास का एंशिएंट नेम विपास है, चेनाब का असिकनी है, रावी का पुरुषनी है, झेलम का वितास्ता है, और इंडस का सिंधु है. तो ये एंशियंट हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एंशियंट नेम्स क्या हैं इन रिवर्स के. ठीक है. उसके बाद सरस्वती रिवर का ये जो फ्लो है आप देख सकते हो, इट ओरिजिनेटेड, बेसिकली द ओरिजिन इज स्टिल अंडर रिसर्च, but it flowed through a lot of states including Haryana, and it even Rajasthan and Pakistan also, and it ultimately emptied its water into the run of Kutch. ठीक है. So a group has been formed to study what are the origins and from where Saraswati river was flowing, and what were the reasons because of which Saraswati river disappeared from the surface of the earth. ठीक है. तो अभी 70 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंड सरस्वती रिवर विच आर वर्किंग ऑन दिस सरस्वती रिवर हेरिटेज. एक सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है. ठीक है. एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 2015. इसका मेन फंक्शन है टू रिवर्टलाइज द रिवर एंड टू हाईलाइट द इंडियन कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब. एक सरस्वती रिवर स्कीम भी है
It has been finalized according to the old maps of Survey of India. तो इसमें पैलियो चैनल मैपिंग ऑफ द सरस्वती रिवर की जाएगी बाय द इसरो एंड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड HARSSE। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके ढूंढ रही हैं कि वेयर इज द रिवर कौन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट इज अ ग्रेट डेजर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। गोबी का मतलब ही मंगोलियन वर्ड से आता है विच मीन्स वाटरलेस प्लेस। एंड द important thing about this is from the map based perspective that what all mountains are surrounding the Gobi Desert. So it lies between Altai mountains and Hungarian mountains to the west, and there is this Kulan Shah and Bai mountains and Tanshan mountains to the west. So let's see this in the map, then it will be more clear. So this is the Gobi Desert, which is spread across northern China and parts of Mongolia. And this is the center capital of Mongolia, that is the Ulaanbaatar. तो इसके गोबी डेजर्ट के आसपास बहुत सारी माउंटेन्स है, जैसे त्यानशान, अल्टाई माउंटेन्स, हंगेन माउंटेन्स, अल्तुन माउंटेन्स, किलियन शान. Okay, so these are the all the important mountains which is surrounding the Gobi Desert, and the desert itself is between all these mountains. तो यहाँ पे precipitation, that is rainfall, बहुत कम आती है. There a lot of mammals are found, for example camels, Kunlun, ठीक है, Kunlun gazelles are found, and Przewalski horses, which once were believed to range in the wide range regions, but अब सिर्फ कुछ ही एरियाज में ये मिलते हैं, ठीक है. एंड दे हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड नाउ, वाइल्ड में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है. दिस इज अनदर मैप, तो यू कैन सी द position of the Gobi Desert here, and there are different mountains like Altai mountains, and this is the important region Pamir Not, from where all important ranges of the world start. For example, Altun Shan, Tarim, Pandi, Tian Shan, all these ranges, important ranges, start from this area that is called the Pamir Knot. Now coming to the next topic, that is the Chenab Bridge. So it is the world's highest rail bridge, and it is located in over the Chenab River. So it connects the Kashmir Valley to the rest of the nation, and its design life is 120 years. It is part of the Udhampur Srinagar Baramulla rail link project. So in this perspective, there are a lot of important projects which are there in the Jammu and Kashmir region. And the Chenani National Tunnel is one, then Jojila Pass is there, then Zimorph Tunnel is there, the work is being done. So there are a lot of different infrastructure projects, tunnels, bridges, etc. being constructed in the Jammu and Kashmir. So from the prelims perspective, what is important is that you know which are the projects which are there in the Jammu and Kashmir region, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो यू जस्ट डू योर रिसर्च एंड फाइंड आउट विच आर द प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग वर्कड अपॉन इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन. जैसे कि कुछ नाम मैंने बताया, जोजिला टनल हो गया, जीम ऑफ टनल हो गया, रामबन के आगे भी बहुत काम चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में. तो आप जरा इसको देखिए और बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैकाल जीवीडी. तो इसमें एक जायंट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप लगा दी गई है लेक बैकाल में. तो दिस विल स्टडी फॉर द न्यूट्रिनोज. इट विल ट्राई टू फाइंड न्यूट्रिनोज, एंड the important thing about neutrinos are they are everywhere in the universe. They are everywhere in the universe, but they are nearly massless, and they have no electrical charge, and therefore they do not interact with any known matter in the universe. They do not interact with any known matter in the universe. Their interaction is very less. So this is why it is very difficult to detect them, because they are always almost massless, and they are almost chargeless, and they do not interact also. So it is very difficult to detect them. They are the smallest particles which are currently being known. And for examples, you must be knowing about atoms. Atoms is made up of nucleus in the center, and then electron is revolving around the nucleus. So within the nucleus, you will see that there are protons and neutrons, and within the protons are made up of different particles which are called quarks. ठीक है.
तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। जब हम एटम्स के अंदर की बात करते हैं तो हम लोग फिर बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो ऐसे ही एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है आपका न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज करेंटली नोन, and they are everywhere but they interact very weakly with other forces, and they interact do not interact with electromagnetic force, they do not interact with any other force, they interact only weakly with the gravity। ग्रेविटी से बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करते हैं वो। ठीक है, तो अब बैकाल में हम लोग इसको क्यों ढूंढ रहे हैं, वाई वी आर लुकिंग फॉर द न्यूट्रिनोज इन द बैकाल? द रीजन इज because Baikal has a clear fresh water, and it has a very thick ice cover over it. So all the other particles which are coming from the universe, they are blocked from the by the huge amount of water and the ice. So all these particles are blocked. Now only the neutrinos are able to go to the depth of this Lake Baikal. All the other particles are either absorbed or blocked by the ice or the water and the water of the Lake Baikal, and only the neutrinos are able to get through to the telescope. So, by keeping the telescope at such a location, we are able to detect only the neutrinos, and other particles will be blocked. So, this is the idea that why we are trying to look for neutrinos in the Lake Baikal. Okay. Now there is some important points about Lake Baikal, that it is situated in the southeast Siberia, and it is one of the oldest and the deepest lakes in the world. ठीक है, and Lake Baikal is so huge that it is believed that it contains 20% of the world's total unfrozen water reserves। ठीक है, तो इसको गैलापागोस ऑफ रशिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, ये आइसोलेटेड रहा है, और इसमें वर्ल्ड रिचेस्ट फ्रेश वाटर फौनाज इसमें मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दिस एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1996। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर resilient infrastructure। This is an initiative which was led or started by India। ठीक है, तो now the European Union has also recently joined this initiative, so this is a big news for us। So basically there was recently a conference on this resilient infrastructure, and in this conference some important points were being discussed। For example, this COVID-19 pandemic is a once in a 100 years pandemic, once in a 100 years disaster, and we need innovations to fight the disasters at the global level। ठीक है, climate change is also another global pandemic, and this can lead to other major disasters। so the focus of the disaster management in the recent in the coming future should be to deal with the climate change also। So therefore there is a need for the climate resilient infrastructure which has to be built। So infrastructure should be resilient to the climate change। This is the main thing that has to be focused upon in terms of disaster management। ठीक है, फिर there is a very high expectation from this conference of party 26। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यूके और इटली जो होस्ट करेंगे अभी 2021 में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होप्स हैं लोगों की कि देर सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस विल बी टेकन। ठीक है, एक्चुअली द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट वाज साइंड इन द COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। तो अभी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, और अभी हमारे को 5-6 साल हो चुके हैं। तो नाउ we need to review the progress made under the Paris Climate Agreement, and we need to set the goals for the future also। तो ये जो COP26 है ये बहुत इंपॉर्टेंट COP मानी जा रही है, एंड इट इज़ होप दैट मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस मे बी टेकन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके प्रायोरिटी एरियाज क्या है कि जो वल्नरेबल नेशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है क्लाइमेट चेंज या अदर डिजास्टर से डील करने के लिए, एंड देयर विल बी फोकस ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस नहीं हुआ था, बट क्योंकि कोविड की वजह से जो डिजास्टर हमने देखा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सारा लॉकडाउन था। अब फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस ओनली वन थिंग कैन बी डन, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन कैन बी डन। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। यही सारे मेजर पॉइंट डिस्कस हुए थे उस अभी जो मीटिंग हुई थी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके। ठीक है, तो
तो ये बोल रहे हैं कि जो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक मास मूवमेंट की तरह लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल कंट्रीज, ऑल पीपल, है ना, स्टार्ट बिलीविंग इन दिस आइडियोलॉजी एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिकम रेजिलियंट टू द डिजास्टर्स। अब कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये इंडिया ने लॉन्च किया था, है ना, रिसेंटली, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इंडिया ऑफिशियली लॉन्च दिस। तो इंडिया के दो ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक इन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों इनिशिएटिव से इंडिया अपना वर्ल्ड डोमिनेंस और वर्ल्ड लीडरशिप के रोल को और ज़्यादा मटेरियलाइज कर रहा है। ठीक है, इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? इंडिया तो था ही, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, ये सारे कंट्रीज, देयर 13 कंट्रीज वर दी फाउंडिंग मेंबर्स। और वर्ल्ड बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड, इनको सपोर्ट किया था इसने। स्लोली एंड स्टडीली मोर मोर कंट्रीज आर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोजेक्ट। स्लोली एंड स्टडीली और ज़्यादा कंट्रीज इसमें आ रहे हैं, और अभी ईयू ने भी बोला है कि इट विल ऑल्सो कम। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंडिया। ठीक है, अभी 20 मेंबर हैं सिर्फ, और अभी बहुत सारे और मेंबर्स जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द सेकंड मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया। ठीक है, एंड इट कैन बी अ वे फॉर इंडिया टू शो दैट इंडिया इज रेडी फॉर द ग्लोबल लीडरशिप के लिए इंडिया रेडी है। तो वो कैसे दिखाएंगे? जब हम ऐसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे और सारी कंट्रीज को ज्वाइन करेगी, तभी हम लोग दिखा सकते हैं कि इंडिया इज रेडी फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें देखो, इंडिया इसका फर्स्ट है इंडिया फिनलैंड की वर्चुअल समिट। फिनलैंड की वर्चुअल समिट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड ने एक वर्चुअल समिट लॉन्च करी। अब इसकी हाइलाइट्स क्या है, कि बेसिकली क्या हाइलाइट्स हो सकती हैं, कि कोविड-19 पैंडेमिक पे डिस्कस किया कि कैसे हम लोग वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, कैसे कोवैक्स इनिशिएटिव को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। तो कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है, कि ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है। इसमें क्या करते हैं कि सब नेशंस को एक्सेस मिले वैक्सीन्स का, और वो भी अफोर्डेबल और इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए। तो ये इस इनिशिएटिव का जो है फोकस है। तो इसको कैसे किया जाए? फिर वैक्सीन सॉलिडारिटी को इन्होंने फिर से बोला कि वैक्सीन सॉलिडारिटी है, मतलब किसी एक कंट्री के पास वैक्सीन है तो सभी को हम लोग वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल अरीना में पार्टनरशिप के बारे में बात करी। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे हम लोग, है ना। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, जैसे हम लोग कैसे आगे कर पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल सिक्स जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करेंगे। एजुकेशन का फ्यूचर क्या होगा, कि अभी जो एजुकेशन है वो पूरी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है, बहुत सारी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो आगे फ्यूचर में एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है क्या चेंजेस हो सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो डिस्कस किया। एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इसका हमारी सबसे बैकबोन हो गई है अभी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको आगे कैसे ले जाना है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। कोवैक्स इनिशिएटिव देखो, इसमें कौन कौन है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, गावी है और सेपी है। ये सारों ने, कोवैक्स इज कोलेड बाय सेपी, गावी, डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ। ठीक है, तो इसका एम है क्या है, कि नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। तो सबको वैक्सीन पहुंचानी है, ये इसका टारगेट है। फिर पोलर इश्यूज के बारे में डिस्कस किया। जो इंडिया है दैट इज एन ऑब्जर्वर इन द आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, और जो दोनों नेशन है वो कंसल्टिव मेंबर है एंटार्क्टिक ट्रीटी में। ठीक है, और दोनों के एक्टिव स्टेशन है अंटार्कटिका में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों पोलर एरियाज में भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिका में। अफ्रीका में बहुत सारे लोग ये दोनों कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब ये बोला जा रहा है कि 2021 वाला जो ये साल होगा, या जो 21st सेंचुरी होगी, ऐसे समझो आप। 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। क्योंकि अभी तक जितनी भी सेंचुरीज थी प्रीवियस, वो वेस्टर्न कंट्रीज पे फोकस थी, उनकी डेवलपमेंट में फोकस थी। बट अभी की जो नई वाली सेंचुरी है, ये अफ्रीका और एशिया पे फोकस्ड होंगी, क्योंकि यहाँ सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है।
अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। फिर यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो डिस्कशन हुआ वो बात हुआ कि 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट है ना, इसकी इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस किया और बोला कि इसके जो रिजल्ट्स जो होंगे है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट में जो भी चीज़ डिस्कस होने वाली है उसके बारे में बात करी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और सस्टेनेबल एसडीजी गोल 13 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, 6 और 13 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इस पर डिस्कस हुआ। 6 क्या है, क्लीन वाटर, और 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ग्लोबल वाटर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात हुई। तो बेसिकली ये सब क्यों बातें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिनलैंड जो है वो एक लीडर है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी में। दिस इज अ लीडर। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से हम लोग क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंडिया में ला सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंट्री में, ताकि हम लोग भी क्लीन डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकें। क्लाइमेट रेलिवेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसमें इंडिया फिनलैंड जो है, इंडिया फिनलैंड और इंडिया यूरोपियन यूनियन कोऑपरेट करते हैं, है ना। देयर इज अ एमओयू इन द कोऑपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, कोalition ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं ये प्लेटफॉर्म्स है फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। ठीक है, 2021 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 और बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15, इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये, और ये डिस्कस हुआ है कि यहाँ पे हमको बहुत ही एक्टिवली डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत ही मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे इन दोनों कॉन्फ्रेंस में, तभी जाके हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। कल्चरल कनेक्शंस तो है ही हमारे, कि हमारे बहुत सारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, एजुकेशन, कल्चरल, टूरिज्म, डायस्पोरा कांटेक्ट हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंडिया और फिनलैंड की रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है हमारी बहुत जगह पे, जैसे कि फिनलैंड सपोर्ट्स इंडिया इन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में इंडिया को सपोर्ट करता है फिनलैंड। फिनलैंड सपोर्ट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन द रिफॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन और उसके रिफॉर्म को लेके इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच इज आस्किंग, एंड अदर मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सपोर्टिंग इंडियाज क्लेम, उसमें से फिनलैंड भी एक है। तो फिनलैंड ऑल्सो थैंक्ड इंडिया फॉर इट्स कमिटमेंट टू सपोर्ट द इलेक्शंस टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2021। तो इंडिया जो है सपोर्ट करेगा फिनलैंड को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के इलेक्शन में 2021 में। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। इसमें एक चीज़ और समझ लो कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, तो फिनलैंड इज अ नॉर्डिक कंट्री। अब ये पता होना चाहिए कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं। इट इज़ अ रीजन विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप अलोंग द नॉर्वेन सी। तो इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और आइलैंड, ये सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये मैप से आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं आपकी सारी, जिस जो येलो कलर में दिखा रहे हैं आपके, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सब। लेकिन इसमें से कुछ कंट्रीज जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं सिर्फ। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं आपकी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है आपकी, जो बाल्टिक सी, जो ये जो सी है ये बाल्टिक सी है, और ये नॉर्वेन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ये नॉर्वेन सी है और ये जो है ये बाल्टिक सी है। तो जो बाल्टिक सी के पास कंट्रीज हैं ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। इसमें इस्टोनिया, लैटविया और लुथेनिया आती हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होंगी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और बाकी जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये पूरा जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज को मिला जुला के हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है कि बहुत सारे एरियाज में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइमेट वाले एरियाज में ये कंट्रीज आपस में सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है,
इंडिया की फर्स्ट नॉर्डिक समिट जो हुई थी 2018 में हुई थी रिसेंटली। तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट शुरू की 2018 में। तो इसका मतलब इंडिया इज फोकसिंग ऑन नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो सकती है किस फील्ड में, एक तो पोलर रीजन्स में कोऑपरेशन हो सकती है, और दूसरा हो सकता है क्लाइमेट में कोऑपरेशन हो सकती है ना। और तीसरा हमेशा हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में अगर इंडिया का कोई एक स्ट्रांग फ्रेंड है, जैसे ब्रिटेन के जाने के बाद यूरोपियन यूनियन में इंडिया का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंड अभी हो सकता है, तो नॉर्डिक कंट्रीज उसमें से एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इंडिया को हमेशा ऐसे पार्टनर ढूंढने चाहिए यूरोपियन यूनियन में, जो इंडिया का यूरोपियन यूनियन में अच्छे रिलेशन हो जहाँ पे, ताकि इंडिया और पूरी यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। ठीक है। इंडिया रिसीव सपोर्ट फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज इन इट्स मेंबरशिप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज की इम्पोर्टेंस को डिपिक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूके's ट्यूरिंग स्कीम। तो यूके ने एक ट्यूरिंग स्कीम लॉन्च करी है ऑन द नेम ऑफ एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक फेमस कोड ब्रेकर था, इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे कोड्स जो है ब्रेक किए थे। जो मैसेजेस कोड्स में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे, उन मैसेजेस को ब्रेक किया था, उनका कोड ब्रेक किया था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मशीन बनाई थी, बोली थी ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन है ना, उसको ट्यूरिंग मशीन भी बोलते हैं, या फिर उसको एक और नाम से बोला जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो जर्मन नाजी फोर्सेस थी, दे वर यूजिंग अ मशीन कॉल एनिग्मा टू जनरेट और क्रिप्टोग्राफिकली लॉक देयर कोड, देयर मैसेजेस। तो बेसिकली एनिग्मा ऐसी मशीन थी जो उनके मैसेजेस को क्रिप्ट करके भेजती थी, एनक्रिप्ट करके भेजती थी। तो ताकि जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिश हैं, या फिर जो राइवल्स हैं, वो उनके मैसेजेस को ना पढ़ सकें। तो एलन ट्यूरिंग का जो काम था वो क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में, कि इनकी जो मशीन ने जो एनक्रिप्ट करके भेजा मैसेज उसको डिकोड करना। तो उसके लिए उन्होंने एक थ्योरेटिकल एल्गोरिथम बनाया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ये कोड को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो एनिग्मा का काउंटर उन्होंने बनाया। तो देर इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी है हॉलीवुड की, द इमिटेशन गेम करके, एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी। तो यू विल एक्चुअली इट्स अ गुड मूवी, एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग इज ऑल्सो कमेंडेबल। ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस पे, ट्यूरिंग स्कीम क्या है। ये ट्यूरिंग स्कीम क्या है कि ये इंग्लिश स्टूडेंट्स को, जो ब्रिटेन में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एनकरेज करेगा टू गो एंड स्टडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट विल एनेबल 35,000 यूके स्टूडेंट्स फ्रॉम टू स्टडी और वर्क अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है। तो इसमें आइडिया क्या है कि इट विल ensure social mobility, and it will give financial assistance of £490 per month for living costs and travel funding, and to offset the cost of passport, etc., to students from the disadvantaged background, that is the poor students. It will give some money to those students so that they can study across the world. So this is a new scheme, and it is different from the Erasmus scheme. The Erasmus scheme covers placement across the UA, European Union, and some non-European countries. ठीक है। बट द ट्यूरिंग स्कीम विल कवर द स्टूडेंट्स स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देयरफॉर उस सेंस में ये डिफरेंट है इरास्मस स्कीम से। और ये सारी स्कीम क्यों आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बाहर निकल गया है ब्रिटेन अब। तो उसको अपना खुद का देखना पड़ेगा कि उसकी खुद की स्कीम्स कौन कौन सी हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को, उसको अगर बाहर स्टडी करने के लिए सपोर्ट करना है, या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है, तो उसको अपनी स्कीम्स खुद निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसके ऊपर इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया के लिए, कि इंडिया तो ऐसी कंट्री है, देर इज अ इंडिया इज द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू द यूके। ठीक है। एंड इट कुड बी अमंग द लीडिंग लिस्ट ऑफ द कंट्रीज विद विच यूके यूनिवर्सिटीज वांट टू इम्प्रूव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोजेक्ट इंडिया यूके के बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो अभी जो हमारी जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स थे, ये यूरोपियन यूनियन फोकस थे। बट अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन अलग हो गए हैं, तो
अब हमें ब्रिटेन स्पेसिफिक जो स्कीम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है उसको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि जो ये स्कीम है ये कौन सी कंट्री की है और इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनात्रा डॉक्ट्राइन। रिसेंटली सिनात्रा डॉक्ट्राइन अडॉप्ट किया है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सिनात्रा डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है? बिकॉज उनको ये दे वर फीलिंग दैट द चाइना was trying to divide and rule these countries of the European Union and the China was trying to increase its influence in the European Union। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक डॉक्ट्राइन को यूज किया दैट इज कॉल्ड एज द सिनात्रा डॉक्ट्राइन। सिनात्रा डॉक्ट्राइन, ठीक है, टू डील विद द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द बीजिंग इन्फ्लुएंस। तो ये डॉक्ट्राइन जो है ये दो पिलर्स पे बेस्ड है। तो पहले समझते हैं कि ये डॉक्ट्राइन है क्या। तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि दिस इज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसमें आइडिया क्या है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको अपने करंट इंटरनल अफेयर्स खुद मैनेज करने दो और उनके इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट या इंटरफेयर मत करो, है ना। दिस इज एन अपोजिट पॉलिसी टू द पॉलिसी ऑफ ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, टू दी ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। तो ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन जो था वो यूएसएसआर के टाइम पे एक डॉक्ट्राइन था कि सोवियत लीडर लियोनार्ड ब्रेजनेव ने ये लॉन्च किया था 1968 में। और इसमें बोला गया था कि सोवियत यूनियन शुड इंटरवीन इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसके अंदर उनके सारे अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना है और प्लस आसपास के जो भी कंट्रीज हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना है ताकि सोवियत यूनियन कैन मेंटेन द डोमिनेंस, डोमिनेंस बनानी है उसको, ठीक है। तो ये ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन था। बट उसके बाद जब मिखाइल गॉर्बाचेव आए जिन्होंने बोला कि सोवियत यूनियन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी को होना चाहिए, तो उन्होंने फिर ये नए डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट कर लिया था दैट इज कॉल्ड द सिनात्रा डॉक्ट्राइन। इसे दिस इज द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये कंप्लीटली अपोजिट है ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन से। दिस नेम वाज मेड पॉपुलर from the song My Way which was popularized by Frank Sinatra। This is an American singer। तो उन्होंने ये जो सॉन्ग को पॉपुलर किया था My Way, उसके नाम पे इस डॉक्ट्राइन का नाम पड़ गया फ्रैंक सिनेत्रा के नाम पे, सिनेत्रा डॉक्ट्राइन। तो अब इस डॉक्ट्राइन जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया है वो दो पिलर्स पे बेस्ड होगा। तो पहला पिलर है कि कंटिन्यूड कोऑपरेशन विद चाइना इन रिगार्ड्स टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस। जैसे कंटिन्यूड कोऑपरेशन, चाइना के साथ कोऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैटिंग कोविड-19 और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। बट इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक सोवर्निटी बाय प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर ऑफ इट्स इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन को स्ट्रांग बनाना है और चाइना से कोऑपरेशन कंटिन्यू करना है। दैट इज द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। फिर एक 17+1 इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। 17+1 इनिशिएटिव, it is also known as cooperation between China and Central and Eastern European countries। So this is in the context of the Central Eastern European countries which is in news। तो ये 17+1 इनिशिएटिव क्या है कि ये इनिशिएटिव है चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और इसमें बिजनेस प्रमोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट की जाती है एंड इन द 17 कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन। तो 17 कंट्रीज में प्रमोट किया जाता है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब चाइना का यू कैन जस्ट सी द चाइनाज हिपोक्रेसी इन दिस दैट the investment of China by in the 12 European Union members as a part of the 17+1 initiative during the period of 2009 to 2010 and 2010 to 2019 was only $8.6 billion। Compare this with the Chinese investment in Finland for the same period, which was $12 billion, and the Chinese investment in Netherlands, which was $10 billion। So China is making such kind of initiatives, so in order to just promote the investment, but actually it is not investing. It is investing only in the areas in which it is feeling that it can get some return। So all these initiatives are just to divide the European Union into small pieces and then so that Chinese can gain more control over these areas or more influence in these areas। So therefore Chinese, even if China is launching this initiative, even after that it is not investing in big amount as compared to the amount it is investing in Finland and Netherlands। So this basically shows the hypocrisy of China that
how its investment is totally controlled by its own interests. ठीक है, तो इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये सिनेत्रा डॉक्ट्राइन को स्टार्ट करना फॉलो कर दिया है कि भैया वी विल कोऑपरेट विद चाइना बट वी विल आल्सो स्ट्रेंथन द यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी। ठीक है, अब इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में एक टॉपिक है। तो रिसेंटली द इस्तांबुल कन्वेंशन इज आल्सो नोन एज द काउंसिल फॉर यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो दिस, अब ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि इस्तांबुल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। So it is a legally binding standards. It sets legally binding standards to prevent gender-based violence. It was adopted in 2011 and it came into force in 2014. It is the world's first binding international accord to protect women and it is forged in Istanbul. इसके लिए इसको इस्तांबुल कन्वेंशन बोलते हैं। टर्की ने इसको साइन किया था 2011 में and had recently withdrawn out of it. So therefore this is in news. So Turkey has withdrawn out of this international convention, Istanbul Convention. अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एफर्ट टुवर्ड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसमें हम एनालाइज करेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या और इंडिया किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर उसने बोला कि कनेक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो देयरफॉर दिस टॉपिक इज इन न्यूज। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या? इट वाज अनाउंस्ड इन 2014 नवंबर 2014 एट द 12th एशियन इंडिया समिट held in Myanmar. It's it is different from the look east policy and it is a successor to the look east policy. तो look east policy में the focus was only on economic cooperation with ASEAN nations and act east policy focuses on extended neighborhood in the Asia Pacific and involves security cooperation as well. So we are not only looking for economic cooperation, we are looking for security cooperation also, and we are not only looking uh, to Asian countries, but our range has extended. We are looking at the extended neighborhood in the Asia Pacific region. So our area of scope is extended and our focus and our region of cooperation, that is our interests have also expanded. इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चरल टाइज, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, एवरीथिंग इज फोकस एरिया ऑफ दिस एक्ट इज पॉलिसी। और ये इंडो पैसिफिक रीजन को फोकस करता है पूरा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन विल बी द प्राइमरी एम। ठीक है, तो वट एवर वी विल डू बाय द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इट विल बी डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो एक्ट जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन और अरुणाचल प्रदेश एंड एशियन रीजन के बीच में। ठीक है, तो इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए? कि इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करे टू इंश्योर दैट द नॉर्थ ईस्ट रीजन सीज डेवलपमेंट एंड इट गेट्स कनेक्टेड टू द एशियन रीजन, द एशिया पैसिफिक रीजन एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि ये रेल लिंक स्टार्ट किया, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस, इनलैंड वाटरवे थ्रू बांग्लादेश हम लोग बात कर रहे हैं, कालारन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, एक ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट विद द म्यांमार एंड थाईलैंड एंड अंडर द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रोड एंड ब्रिजेस ऑफ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन अंडरटेकन। ठीक है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया इज टेकिंग। India is also implementing the quick impact projects in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam to provide development assistance to grassroots level communities in the field of education, water resources, health, etc. Among other initiatives which has been extended in the form of medicines and medical supplies to the Asian countries during the pandemic of COVID-19. अदर इनिशिएटिव्स क्या है? ये महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इनॉग्रेशन ऑफ 3 रो पैक्स वेसल्स ऑपरेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम नीमती माजुली आइलैंड्स, नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी एंड धुबरी हस्तसिंगिमरी। ठीक है, तो यहाँ के बीच में बहुत सारे हम लोग इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, है ना। धुबली फुलवारी ब्रिज है, नेशनल बैम्बू मिशन है। All these are aimed at the development of the northeast region and recently the Bru and Riyang settlement has been reached, that the agreement has been signed between the government of India, the government of Tripura and Mizoram and the Bru community on in January 2020 to put an end to the 23-year-old Bru refugee crisis. Bru refugee crisis का end हो गया है
2020 में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन कम्प्लीटली। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 है, ये लॉन्च किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन गुवाहाटी। The vision document emphasizes on leveraging digital technologies to transform the lives of the people in the Northeast and enhance the ease of living in the Northeast region. नीति आयोग का फोरम है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। द फोरम फोकस्ड अटेंशन, इट प्रोवाइड्स फोकस अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है। देन द फोरम एग्जामिन्स द वेरियस प्रपोजल्स at the center and the state level to prepare the plans for speedy development of the northeast region. And the forum also proposes that the development of projects in the northeast region would be based on the concept of हीरा। ये हीरा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था। तो उनका हीरा का फुल फॉर्म क्या है? हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज। हाईलैंड, इनलैंड वाटरवे, रेलवे एंड एयरवेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ हीरा। तो जो भी डेवलपमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट का वो हीरा से ही होगा। ये सारी चीज़ हम जब बनाएंगे तभी नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे ये एशियन को कनेक्ट करता है। फिर हमें अगर इंडो पैसिफिक रीजन से कनेक्ट होना है तो नॉर्थ ईस्ट कैन प्रोवाइड अ गेटवे। देन अगर हमें ब्रह्मपुत्रा ये बांग्लादेश से अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं तो वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो बांग्लादेश के थ्रू वी आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। तो दिस विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि ये कॉरिडोर है, यहाँ से सारा सामान जाता है अभी। तो वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन दिस एंड वी वांट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो हमें बांग्लादेश का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। फिर उसके अलावा हेरिटेज टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है। उसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत अच्छा है। तो क्लाइमेट के अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रोवाइड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट इज द फिजिकल ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ये सारी इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट रीजन की फॉर द इंडिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे मैंने बताया अभी रिसेंटली, तो ये एक कॉरिडोर है जो कि यहाँ पे लाई करता है। दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे एक प्लेस है सिलीगुड़ी। ठीक है। देयरफॉर इट इज नोन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड इट इज 200 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज ओनली 60 किलोमीटर वाइड। एंड व्हेन इट इज द नैरोवेस्ट, ओनली वहाँ पे नैरोवेस्ट पॉइंट पे सिर्फ 17 किलोमीटर वाइड है। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ चिकन नेक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि दिस इज द नैरोवेस्ट पॉइंट इन द इंडिया। तो अगर चाइना यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आ गया, यहाँ पे और ये कॉरिडोर को कट ऑफ कर दिया किसी तरीके से, देन आवर एंटायर कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन विल बी कट ऑफ। So therefore, this region, Siliguri corridor, is very important, and also we should have alternative means of reaching the northeast region through Bangladesh or through sea projects such as Kaladan multimodal project. Kaladan multimodal projects वगैरह ये सब इसीलिए एम्ड है कि हमें नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ानी है। North eastern states are known as the seven sister states, and Sikkim is referred to as the brother of the seven sisters. Sikkim is not included in the seven sisters. तो ये सारे स्टेट्स की आपको कैपिटल और इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है सिंपल सा कि नागालैंड शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिक्किम आ जाएगा ऑप्शन, फिर नागालैंड आ जाएगा, फिर मेघालय आ जाएगा और फिर आ जाएगा त्रिपुरा। तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें ऑब्वियसली अगर आपको मैप याद है तो सिक्किम नहीं करता है बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के साथ और नागालैंड नहीं करता है। तो इस टाइप से मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। So with this we conclude the discussion for this video. I hope you have learnt a lot. If you have liked this video, please share it with your friends so they also get to know important things. Thank you.